तो यार हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि शार्क टैंक पर जो बिजनेसेस आते हैं उनका एग्जैक्टली होता क्या है, क्या उन्हें एक्चुअल में ग्रोथ मिलती भी है या नहीं। और यही सवाल लेके हम चले गए दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप इवेंट स्टार्टअप महाकुंभ में, जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री से मल्टीपल स्टार्टअप्स आए थे। कुछ कुछ आइडियाज तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और उन्हीं के बीच में वो ब्रांड भी आए थे जो शार्क टैंक पर अपीयर हुए थे। तो हम अपने सवाल लेके पहुंच गए इन ब्रांड्स के पास। सबसे पहले हम गए भरोसी के स्टॉल पर। भरोसी एक ऐसा ब्रांड है जो क्लेम करता है कि वो बिना मिलावट के मिल्क, घी, बटर, ऑयल, पिकल प्रोवाइड करता है। वेल, इन्हें शार्क टैंक पर फंडिंग तो नहीं मिली थी, लेकिन इनका एपिसोड एयर होने के बाद इनके ब्रांड की ग्रोथ पर क्या असर हुआ उसे समझते हैं। तो स्टॉल पर हमारी मुलाकात हुई राधिका जी से, जो भरोसी की ब्रांड मैनेजर है, और हमने इनसे पूछा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था शार्क टैंक पर आने के बाद, सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, उन सब चीज़ों पर हमने बात की। Oh, it was great. I think a lot of people got to know about us. Awareness increase हो गई थी काफी ज़्यादा. We also saw an increase in our sales as well. And I think a lot of people just wanted to try out our products. They created a lot of content around the same as well, unpacking our products, unpacking our products, and trying them as well. So yeah. तो आपके सेल्स वगैरह में कोई डिफरेंस आ रही है? It shot up actually. So I think we were operating from Gurgaon back then. We were available pan India back then as well, but we were not listed on quick commerce channels. After that, we also got ourselves listed on quick commerce channels, so we expanded from these particular channels as well. Yeah. Okay, thanks. Thank you. तो इसके बाद हम गए दूसरे स्टॉल की तरफ, स्टार्टअप महाकुंभ में। फिर हमारी मुलाकात हुई वैभव जी से, जो कि मॉम्स होम के फाउंडर है, और शार्क टैंक पर इन्हें विनीता जी से फंडिंग भी मिली। Hi Vaibhav. Hi. So how was your experience after coming on Shark Tank? It's a phenomenal experience. You get to so many stages. So there are 4 or 5 stages that you have to clear before you go live, and every step is a detailed process. And you prepare for everything, and then when the final shoot happens on the shop, you have to be really prepared, and then it gets live on stage. So the experience is really good, and you have to be very well aware about the market situations, everything. So was there any jump in your sales or anything after appearing on Shark Tank? Yes. We got a very good jump, and our website traffic increased, our conversions have increased, and even on quick commerce. Okay. So what about your expansion? पहले आप कहाँ थे and Shark Tank पे आने के बाद क्या डिफरेंस आया? अच्छा ही. Expansion our business has grown 2 folds Okay. in a period of 3 months, and we have got so many franchise inquiries. We are opening so many stores, so that is a jump that we have got. Cool. Thank you. फिर इसके बाद हम गए कैफेटेरिया में थोड़ा खाने पीने के लिए। देन बैक टू आवर मिशन। तो स्टार्टअप महाकुंभ में हमें घूमते घूमते हेयर ओरिजिनल्स का स्टॉल दिखा, जो शार्क टैंक पर आए थे और 3 शार्क्स की डील लेकर गए थे। तो यहाँ हमारी मुलाकात होती है श्यामा से, जो कि मार्केटिंग और ऑपरेशंस हैंडल करती है। फिर हमने इनसे इनका शार्क टैंक पर आने के बाद का एक्सपीरियंस पूछा। Shama, how was your experience? How was the brand experience after appearing on Shark Tank? कैसा रहा था पूरा? Okay, that's it. Okay, hi, I'm Shama. So if I talk about the experience, people are more aware about hair extension. Initially, it was a taboo. If someone wears a hair extension, people are like, oh, they are wearing hair extension. But now they are more aware that it is sometimes it's a necessity, and it's for fashion also. And if you can see, every time, every year, there are companies who are coming in Shark Tank for hair extension. And even if I talk about my brand, our Hair Originals, we just came in season 1 for funding, and in season 4 we just came as a success story. So as you can see how we are evolved, from season 1 we came for funding, and we just came for the success story. So we have grown so much, and hair extension need is increasing day by day. So that's why. Yes. Thank you, Shama. Thank you. इसके बाद मुझे दूर से वाइस लाइफ का स्टॉल दिखा, जो कि योगा मैट्स का बिजनेस करते हैं। इन्हें शार्क टैंक पर 4 शार्क से डील मिली थी, और इनके काउंटर पर हम मिले मिस्टर प्रशांत से, और उनसे शार्क टैंक पे आने के बाद का एक्सपीरियंस पूछा। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ भी मिलती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लोगों को पता चलता है कि एक ब्रांड है, कि वाइस लाइफ है, वहाँ पे योगा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको सारी चीजें, लोगों को प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद आपके प्रोडक्ट शोकेस हो जाते हैं, अच्छे सेल्स इंक्रीज होती है, बूस्टअप होता है। उसके बाद बहुत कुछ हेल्प हुआ, वहाँ जो फंड देते हैं वो भी हेल्प करते हैं, साक्स भी अच्छा खासा हेल्प करते हैं उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है।
इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो इस इवेंट में अपना आइडिया प्रेजेंट करने आए थे, कुछ को तो उनमें से इन्वेस्टमेंट भी मिली। वो वीडियोस भी जल्दी इस चैनल पर आ जाएगी। इसके अलावा हम बिजनेस, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।